Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is unleashing the youth potential in development work, Goonj experience, insights, and impact. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Manvendra Singh, Professor and HOD, School of Social Sciences and Languages, Lovely Professional University. He has over 15 years of experience in teaching, research, and industry. He has published 4 books and 65 research articles. Dr. Singh has guided multiple PhD and PG students, organized international conferences, and more. So now I would like to introduce Ms. Pooja Prasad, our guest. Welcome, Ms. Pooja Prasad. Social worker, she is a social worker and freelancer. Her diverse experience and passion for social impact to drive her efforts to create positive, lasting change in communities. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Nitin Kumar, Assistant Professor and Deputy Dean in the Department of Outreach and Engagement. Brings over 15 years of experience in the education sector. He specializes in strategic planning, operational oversight, and fostering cross departmental collaboration. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. Now I'm going to hand over this session to our experts, Dr. Manvendra Singh and Ms. Pooja Prasad, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. Thank you so much, ma'am, and a very good morning to one and all, and welcome in this session in which we are going to delve deeper upon the Team Goonj, which is a very renowned NGO, non-governmental organization, and our expert resource person of the day, Miss Madam Pooja Prasad, who is having experience in different profiles. So, just to give you a glimpse, she has started his internship at Dainik Jagran, and then she became the reporter at The Citizen, the Feminism India Youth Ki Awaaz. Then she was a part of this direct dialogue initiatives, and then she started her fellowship at Goonj, where she is working on creating sustainable livelihood opportunities for the missed out communities, and successfully created and reached out to an exhaustive list of potential partners who are working on ground with missed out communities. She has organized different and many informative sessions with team members on issues such as gender, such as leprosy, such as menstruation hygiene, etc. And she has implemented field initiatives with the community in several parts of Rajasthan and Bihar. She is the team lead of School to School initiative and a core member of Urban Relations and Partnerships. Besides this, she is having an experienced development and communication professional with demonstrated history of working with civil society organizations and many different media platforms. She is skilled in research, community engagement, fundraising, and public outreach, creative writing, as well as visual media. So, a very warm welcome and a very good morning to you, Madam Pooja Prasad at Lovely Professional University. थैंक यू सो मच सर. आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक यू. हम क्या शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, it is already started. You can जी. start with the highlight of the, first of all, the organizations, like what is ओके. the Goonj all about, what जी. are the areas and the diversity of areas in which this institution is working, what is your role, what is your profile, and how Goonj is appealing to especially the students who are would like to or who are aspiring to work for social work, community development projects, whether national or international. As I was looking at your brief profile, in which you have mentioned that you have got this wonderful experience of working with Greenpeace organizations as well. यस. यस सर. So, so in that direction, I hope we will be able to discuss. Over to you, ma'am. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. मैं इसे थोड़ा हिंदी इंग्लिश में रखूंगी. जैसे कि अगर हम आज के सेशन की बात करें, आज की बात करें, तो मेरा एक पहले सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जब
हम किसी भी शहर में रहते हैं और हम सोचते हैं कि उस शहर की समस्याएं क्या है या फिर उस शहर के चैलेंजेस क्या हैं, तो हम तब क्या सोचते हैं? मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हमारे दिमाग में आते हैं बट सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में नहीं आता, या फिर हम सॉल्यूशन ओरिएंट उस तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इसी की शुरुआत जो है मैं थोड़ा सा करते हुए करूंगी कि गूंज किस तरीके से सोल्यूशन के ऊपर काम करता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं बट उसके सोल्यूशन भी बहुत सारे होने चाहिए। तो इसी सोल्यूशन के साथ हम हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा? Yes, yes, यस it मैम, is visible. स्क्रीन जी, विजिबल है, आप ओके, कंटिन्यू करें। ओके। तो जैसे कि हम गूंज की जब बात करते हैं तो गूंज किस तरीके से काम करता है? गूंज जो है वो सस्टेनेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन सिटीज एंड रूरल के मतलब रूरल सिटीज के अराउंड करता है। सरप्लस के थ्रू जो है वो काम करता है। जितना भी अर्बन सरप्लस है, हम जब सरप्लस की बात करते हैं तो हमारे लिए काफी छोटी चीज होती है कि हाँ हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज उससे कर नहीं रही, बट उस एक्स्ट्रा मटेरियल से रूरल एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो गूंज जो है उस तरीके से काम करता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना भी काम है वो डेवलपमेंट वर्क हो सके, रूरल डेवलपमेंट वर्क हो सके। एंड जितना भी चीजें जो है जैसे हाउस होल्ड लेवल पे जितने भी चीजें हैं वो किस तरीके से एक अलग भूमिका निभा सकते हैं उस लेवल पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो जब गूंज की हम लोग बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये ट्रैश बेस्ड है, नॉट अ कैश बेस्ड है बट ट्रैश बेस्ड है। और इसकी शुरुआत जो है, गूंज की शुरुआत आप सभी लोग को, जो जिन जिन लोगों को मालूम होगा कि गूंज कब शुरू हुआ है, गूंज को शुरू हुए 26 साल हो चुके हैं। 1991 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अंशु गुप्ता जी जो है इनके फाउंडर है। एंड इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो भी काफी यंग थे। आज से 26 साल पहले वो 20-22 साल के एक जवान लड़के थे जिन्होंने अपना जर्नलिज्म कंप्लीट किया था। एंड डिफरेंट स्टोरीज को कवर करते थे अलग अलग लेवल पे जाके। एंड जब कवर करते थे तो मजा आता था उन्हें। तो इसी तरीके से एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक अलग तरीके से एक स्टोरी मिली जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, हाँ। तो हाउ इट स्टार्टेड, दरअसल क्या हुआ कि हबीब भाई जो है, जैसे कि आप ये रिक्शा देख सकते हैं यहाँ पे, तो हबीब भाई जो है वो एक रिक्शा पुलर थे जो कि अनक्लेम डेड बॉडीज को उठाने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस से उनको 2 मीटर कपड़ा और 20 रुपए उस टाइम पे मिलते थे। तो जब ये स्टोरी उन्होंने देखी और उन्होंने उनसे बात किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि किस तरीके से हबीब भाई ने 2-4 स्टेटमेंट्स दिए जो कि उनको काफी ट्रिगर किया और उनको काफी किक मिली इस चीज से। पहला स्टेटमेंट हबीब भाई का ये था कि कैसे सर्दियों में उनका धंधा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसको धंधा ही बोलेंगे, उनका काम है वो। तो जब उन्होंने बोला कि उनका रोजगार बढ़ जाता है सर्दियों में। दूसरा, उनकी जो छोटी बेटी थी जो 6 साल की थी, उनसे ये स्टेटमेंट आया कि जब उसे ठंड लगती है तो वो कभी कभी लाश के साथ चिपक के सो जाती है क्योंकि लाश करवट नहीं बदलती है। तो ये 2 स्टेटमेंट जो थे वो कपड़ा कितना जरूरी है इस मुद्दे को दर्शाते थे। एंड इन 2 स्टेटमेंट से जो अंशु गुप्ता जी है उनका एक अंदर से बोल सकते कि एक किक उनको मिली कि किस तरीके से जब हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो हम हमेशा कपड़ा शब्द भूल जाते हैं। हम हमारे जबकि हमारे लेंसेज जो है वो कपड़े के अराउंड ही बिल्ड होते हैं। अगर किसी ने अच्छा कपड़ा पहना तो शायद वो एजुकेटेड होगा, उसका पेट भरा हुआ होगा और उसके पास घर भी होगा। बट सेम अगर हम लोग किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो शायद वो भूखा भी होगा, उसके पास घर भी नहीं होगा और वो एजुकेटेड भी नहीं होगा। तो कपड़ा किस तरीके से हमारे लेंसेज चेंज करता है इस बात पे जो है वो गौर होना शुरू हुआ। और इस तरीके से जो है उस समय वो बिल्कुल यंग थे तो उन्होंने उनके पास जितने भी कपड़े थे अराउंड 65-67 कपड़े उन्होंने अपने घर से निकाले, सरप्लस निकाला इन कपड़ों का। और उन्होंने ये चैनलाइज करना शुरू किया अपने ही घर से, मतलब अपने से ही खुद से शुरुआत करनी शुरू करी। तो ये बहुत जरूरी है जब हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं या हम लोग कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं या चेंजेस की बात करते हैं, तो वो शुरुआत हमारी खुद से होनी बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके से गूंज की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके गूंज ने जो है वो अलग अलग इनिशिएटिव पे जाना शुरू किया। तो अगर मैं आपको कुछ हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात बताऊं,
तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग लोकल सॉल्यूशंस जो है प्रायोरिटाइज करें, लोकल सॉल्यूशंस को। दूसरा जो है, हम लोग कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती कि हमको लगता है कि अगर ये हम चेंज कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं चेंज करने से पहले। तो पहले उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके बाद चेंज किया जाए। दूसरी अगर बात करें तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कभी भी अगर आपने सोचा होगा कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ऊपर है, हम गिविंग कर रहे हैं तो हम ऊपर है और जो रिसीव कर रहा है वो नीचे है। बट गूंज में हम बात करते हैं कि सब लोग जो है इक्वल स्टेक होल्डर है। अगर आपका ट्रैश कोई ले रहा है, आपका सरप्लस कोई ले रहा है, तो आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि वो आपका सामान ले रहा है और वो उसको आगे तक यूज कर रहा है, वो लैंड फिल में नहीं जा रहा है। उससे एक पुल बन रहा है, उससे एक कनाल साफ हो रही है, उससे एक स्टैंड बन रहा है। तो एक कपड़ा, एक साड़ी, एक जूता, उससे क्या क्या चीजें जो है वो डेवलप हो रही है। तो गूंज का आइडिया इस तरीके से शुरू हुआ कि लोकलाइज सॉल्यूशंस को हम लोग आगे करें। एंड हम लोग जो है वो एड्रेस करते हैं जितने भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें नीड्स की, बात करें इश्यूज की, बात करें, उन सब चीजों को हम लोग ओवरलुक करते हैं। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं किसी भी एरिया पे। एक ये छोटी सी वीडियो है जो कि मैं प्ले करना चाहूंगी। ये 2022 में नेशनल ज्योग्राफी ने गूंज के ऊपर बनाई थी, और इससे थोड़ा सा आपको इंसाइट मिलेंगे कि गूंज किस तरीके से काम करता है। Normally, whenever we talk about donation, we give what we have. We don't give what people need. And that's the gap we wanted to fill. The idea was to start a movement where the underutilized urban material can be channelized to the people in need, not with charity, but with a lot of dignity. My name is Anshu Gupta, and I run this movement, social enterprise called Goonj. 20 years back, I met this person who used to pick up unclaimed dead bodies. This person's statement that in winters his work goes up, and I thought that it is happening because of cold. Until I realized that it is actually not because of cold but lack of clothing. It's a highly preventable death or suffering. At Goonj, we collect anything and everything which can be reused. Cloth, utensil, footwear, furniture, old wash basin, pipe fittings, fans. When this material comes to our center, it goes through a very rigorous process. It goes through repairing, washing. After that, it is converted into various kits. Not even a single inch of cloth will go waste. Then it goes to the remotest possible part of the country, especially in the villages and in the slums. There is this pond which is completely closed for the last 10 years. Now these hundreds of villagers have taken it up. They will clean it up so that the water recharge happens in the process. Cleaning of this one big pond will take care of the livelihood of people, they take care of the livestock and the daily needs of people. With their own labor, people work on it, and then after a few days of work, with a lot of respect, they receive these kits. It can be given in a very dignified way. We need to be thankful to every single person who is using our second-hand material, because that person gives respect and second life to something on which we have put in a lot of emotions and have a lot of heart and money. ये
ये एक स्मॉल सा वीडियो था जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो बनाया गया था। अ, हाँ, तो जैसे हबीब भाई की स्टोरी जो हम लोगों ने अभी बात किया था, जी। तो जैसे कि हबीब भाई की स्टोरी की हमने बात करी थी, और अभी वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हबीब भाई की स्टोरी से गूंज, कह सकते कि गूंज की शुरुआत हुई। उसी तरीके से हमारी लाइफ में हमें कई बार ऐसी किक्स मिलती है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना शुरू करते हैं थ्रू द सोसाइटी। इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम चलेंगे तो गूंज किस तरीके से काम करता है, अ, हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, तो वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गूंज में जितना भी मटेरियल आता है वो आप जैसे इंडिविजुअल्स के घरों से आता है, स्कूल से आता है, कॉलेजेस से आता है, और ये जितना भी होता है सरप्लस, ये हम लोग कलेक्शन कैंप्स एंड कलेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं। एंड फिर उसके बाद सेंटर्स में आता है, हमारे आर्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स है पैन इंडिया, और इन सेंटर्स में आके वो मटेरियल को सॉर्ट किया जाता है, उससे वैल्यूएबल किट्स बनाई जाती है, जैसे कि फैमिली किट है, राहत किट है, एनजेपीसी जो कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की किट है, स्कूल किट है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रूरल स्कूल के बच्चे हैं उनको जो स्टेशनरी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके, ये सब तरीके की किट्स बनती है। और उसके बाद जो है वो रूरल एरिया में चैनलाइज होती है विद द डिग्निटी। चैनलाइज होने के बाद जो है कम्युनिटीज अपने एरिया में जो भी उनका प्रॉब्लम है, जिसको काफी टाइम से डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बट उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा, हम लोग उनके साथ बातचीत करते हैं, इक्वली वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं कि किस तरीके से लोकल लेवल में उनको सॉल्व किया जा सकता है। और इस सॉल्विंग आइडिया से जो है कम्युनिटी वहां पे काम करती है, और उसके बाद डिग्निफाई वे में उनको गूंज का किट रिसीव होता है। तो कम्युनिटीज अपने लेवल पे अलग अलग इश्यूज पे काम करती है, जैसे कि अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो जैसे कि कम्युनिटीज जो काम करती हैं वो क्लॉथ फॉर वर्क इनिशिएटिव है, जिसमें कि कम्युनिटीज अपने अपने एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे पॉन्ड क्लीनिंग है, या फिर स्टैंड बनाना है, या फिर क्रॉस करने के लिए बांध बनाना है, इस तरीके की चीजें जो है वो कम्युनिटी अपने लेवल पे करती है, और उसके बाद जो है उनको किट्स मिलती है। तो इसमें कम्युनिटी ही खुद बताती है कि कितने लोग इसको कर पाएंगे, कितने समय पे हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा, और इसके बाद जब वो इसको पूरी तरीके से कर लेती है तो उसके बाद गूंज का किट उनको रिसीव होता है। साथ में अगर हम लोग इसी तरीके से लैंग्वेज एंड लेंसेज की बात करें, जब मैं अभी भी बोल रही थी इस चीज के बारे में कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों की, या फिर किसी सही तरीके से कपड़े नहीं पहने वाले लोगों की, तो हम अपने लेंसेज चेंज करते हैं उस तरीके से। तो अगर हम लोग इस चीज को देखें कि हमारे लिए पूरी तरीके से डिस्कार्ड है, और अगर आपको मालूम होगा ये सुनामी की तस्वीरें हैं, और जब सुनामी आया था तो ऑलमोस्ट पैन इंडिया लोगों ने जो है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर जो है कपड़ा लेना शुरू किया कि हेल्प होगा। बट जब वहां पे देखा गया तो पैरेलली दूसरा सुनामी क्रिएट हो गया जो था, जो कि कपड़ों का था। तो इतने बड़े लेवल पे हम लोगों ने कपड़ा वहां पे दिया आउट ऑफ लव, बट हम लोगों ने माइंडफुली नहीं दिया। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो माइंडफुली करना कितना जरूरी है। तो इस डिस्कार्ड से गूंज ने किस तरीके से डिग्निफाई वे में काम किया डिग्निटी के ऊपर। हम लोगों ने इस डिस्कार्ड से सुजनी बनाई, आसन बनाया, माई पैड क्रिएट किए, जो कि हम लोग हमारे रूरल किट जो भी हमारे किट्स होते हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। अगर सुजनी की बात करें हम, तो सुजनी को जो है वो सर्दियों में आप ओढ़ सकते हैं, गर्मियों में बिछा सकते हैं। आसन की बात करें तो आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं रूरल एरिया में, वहाँ पे बच्चों के पास बैठने के लिए कोई भी टेबल चेयर नहीं होता है, तो आसन बैठने के काम आता है। एंड माई पैड की बात करें तो गूंज जो है वो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन में काम करता है, तो हमारा एक कॉटन पैड किट होता है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोगों ने उस डिस्कार्ड से इस तरीके से क्रिएट किया। माइंडफुल गिविंग की बात करें तो बहुत ज़रूरी है माइंडफुल गिविंग करना। एंड ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं हमारे। गूंज जो है डिजास्टर पे भी काफ़ी रैपिडली वर्क करता है, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। हमारी कोशिश ये होता है कि हम लोग डिजास्टर्स पे तो काम करें, बट इनविजिबल डिजास्टर्स पे भी काम करें। अब इनविजिबल डिजास्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सर्दी को हम कह सकते हैं कि वो एक इनविजिबल डिजास्टर है। ठंडियां जब आती हैं तो
हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद सर्दियाँ उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी सुहानी नहीं होती जितनी सुहानी हमारे लिए होती है। तो गूंज जो है अपना एक इनिशिएटिव रन करता है जिसे कहते हैं उड़ा दो जिंदगी। इस कैंपेन के अंदर हम लोग थ्रू आउट द विंटर सीजन, अक्टूबर टू जनवरी, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सब इलाकों में विंटर मटेरियल पहुंच सके जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत है। इसी तरीके से कुछ मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर हमारे काम इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम लोग कम्युनिटीज के साथ बातचीत करते हैं कि किस तरीके से टैबूज के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर क्या चीज़ों का उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वुमेन्स के अराउंड, एडोलेसेंट्स के अराउंड, इन सब तरीकों से। एंड वुमेन्स किट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जब कम्युनिटी में वुमेन्स जो है अपने एरिया पे अलग अलग लेवल पे काम करती हैं, जैसे प्राइवेट स्पेस बिल्ड करना, किचन गार्डनिंग करना। तो आपको इन सब चीज़ों से ये तो आइडिया लग रहा होगा कि जब गूंज काम कर रहा है कम्युनिटीज के साथ, तो कम्युनिटीज भी कुछ काम कर रही हैं बदले में, उसके बाद उनको मटेरियल रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम चैरिटी की बात करते हैं, जब भी डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, सोशल सेक्टर की बात करते हैं, एनजीओ की बात करते हैं, तो हम चैरिटी को बहुत इन्वॉल्व करते हैं बीच में। बट यहाँ पे चैरिटी नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी जो है वो डिग्निफाई वे में मटेरियल रिसीव कर रही हैं और इसके लिए वो अपने एरिया पे काम भी कर रही हैं। एजुकेशन में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि रूरल एरिया में हम लोग सेशन क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बाद उनको स्कूल किट प्रोवाइड होता है। एंड अर्बन एरिया में हम बच्चों के साथ जो है वो एम्पैथी सेशन बिल्ड करते हैं, नोइंग गूंज सेशंस करते हैं, ताकि उन्हें रूरल साइड का थोड़ा सा और अंदाजा लग सके। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अर्बन एरिया में पेरेंट्स इन्वॉल्व होना बहुत ईजी है, बट रूरल एरिया में उतना ही मुश्किल है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स है और पेरेंट्स है वो इक्वल स्टेक होल्डर्स बन सके और स्कूल्स के अराउंड जो है एक्टिविटीज कर सके, जैसे फेंसेस मेकिंग करना हो गया, पेंटिंग करना होगा, इन सब तरीके की एक्टिविटीज कर सके। ये कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे, जैसे कि जो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो कि थर्ड ग्रेड मटेरियल्स जो होता है। गूंज 3 तरीके के तरीकों से काम करता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो थर्ड ग्रेड मटेरियल होता है जो कि कहीं यूज नहीं हो रहा है, जैसे टाइज है, लार्ज साइज डेनिम्स है, कैसेट के रील्स है, इन सब चीज़ों से भी हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स जो है तैयार करते हैं, जो कि इस तरीके के लगते हैं ग्रीन बाय गूंज में। तो ये एक अलग इनिशिएटिव है जिससे हम लोग पूरी तरीके से जितना भी डिस्कार्ड हम लोग जनरेट करते हैं, उस डिस्कार्ड को भी हम लोग जो है अपसाइकिल करते हैं। एंड ये कुछ यूथ एंगेजमेंट्स है कि गूंज में हम लोग लगातार जब से काम करते आ रहे हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमेशा आपको जो है यूथ एंगेज होता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट अलग अलग तरीके से यूथ को एंगेज करते हैं। हम लोग 3 तरीके की फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं यूथ को, जिसमें सेतु फेलोशिप है, जिसमें आप पूरा तरीके से अर्बन, जितना भी अर्बन का पार्ट है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये सारा हम लोग सेतु फेलोशिप में आपको पूरा एक्सपीरियंस देते हैं। ग्राउंड रूट फेलोशिप में हम आपको रूरल का एक्सपीरियंस देते हैं कि किस तरीके से आप रूरल एरिया में काम कर सकते हैं। एंड इसमें आपको प्रॉपर 1 ईयर के लिए एंगेज होना होता है। सेतु फेलोशिप में भी आप 1 साल के लिए एंगेज होते हैं, एंड ग्रास रूट फेलोशिप में भी आपको 1 साल का पूरा रूरल एक्सपीरियंस जो है वो कराया जाता है। एंड थर्ड फेलोशिप जो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग फेलोशिप है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप कहते हैं। नेक्स्ट जेन फेलोशिप में जितने भी यहाँ पे प्रोसेसिंग में हमारी टीम लगी हुई है, अगर आपने गूंज कभी विजिट किया है, आप ऑनलाइन गूंज का पूरा सेंटर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दीदी भैया लोग हैं जो प्रॉपर प्रोसेसिंग लेवल पे लगे रहते हैं, जो कि एक एक शर्ट, एक एक पैंट, एक एक जीन्स को देखते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो उन सब टीम मेंबर्स के बच्चे जो है या फिर उनका जो ब्लड रिलेशन में, उनको भी हम लोग फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। एंड इसका भी पूरा प्रोसेस जो है वो उसी तरीके से होता है जैसे कि सेतु फेलोशिप और ग्रास रूट का होता है। इसके अलावा हम जो है बहुत कोशिश करते हैं कि स्कूल एंड कॉलेजेस को इंगेज कर सके इंटर्नशिप के थ्रू। तो कम्युनिटी वॉरियर इंटर्नशिप है हमारा स्कूल्स के लिए, एंड सोशल इंटर्नशिप हमारा कॉलेजेस के लिए है, जिसमें हम लोग यूथ को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग सके गूंज किस तरीके से काम कर रहा है। अगर
हाँ सर, आपका कोई सवाल हो तो। Dr. Manvendra. Okay, ma'am. Thank you so much for sharing this wonderful insight on the organization Goonj and the kind of roles that are being done in this organization and the range of the activities which you people are doing. Now, my next question to you, ma'am, is what kind of challenges you face while you are doing this kind of activities? Because I believe ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आपने बता दिया है. तो जी क्या challenges आपको face करने पड़ते हैं? जी। तो सर दोनों लेवल पे हमें अलग अलग चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अर्बन लेवल पे बिल्कुल अलग है, मटेरियल के रिगार्डिंग है, माइंडफुल गिविंग के रिगार्डिंग है, आप किस तरीके से अपनी पैकिंग करते हैं मटेरियल की, किस तरीके से गिविंग करना चाहते हैं, वो सब चैलेंजेस अलग है। बट रूरल साइड के चैलेंजेस बिल्कुल अलग है। रूरल में कम्युनिटीज किस तरीके से अपने एरिया को देखती है, वहाँ पे क्या हमारे लिए शायद कुछ और सोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक स्टोरी शेयर करूँ पॉन्ड डिगिंग की या फिर वेल डिगिंग की, तो आप जानते ही हैं जब कुएं खोदे जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो वो अलग तरीके से खोदे जाते हैं। हमारे तरफ से तो हम वहाँ पे जांच करेंगे कि यहाँ पे पानी का बहाव कैसा है, पानी कैसा है, बट वहाँ पे एक अलग टेक्निक है, वहाँ के लोगों की अलग टेक्निक है कि वो अपने हाथ में नारियल लेके चलते हैं, नारियल जब टेढ़ा होता है, हल्का सा हिलता है, तो वहीं पे कुआं खोदा जाता है। तो कैसे प्रैक्टिसेस दोनों अलग है, और ये चैलेंजेस कभी आता है हमारे लिए समझने के लिए कि अच्छा ये लोकल प्रैक्टिस है तो हमें इसके साथ जाना है, तो जितने भी लोकल सोल्यूशन होते हैं हम उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल कई बार ऐसा होता है कि रूरल साइड में मटेरियल उस तरीके से बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा हम्बल होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है कि वो उन्हें कभी ऐसे रश नहीं रहता कि हमने काम किया है तो हमें मटेरियल आज ही मिलना चाहिए। उनको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिटी आकर उसने सॉल्व किया है। जैसे पॉन्ड क्लीनिंग की बात है, तो शायद वो पॉन्ड कब कितने सालों से बंद होगा, बट एक एक जगह क्रिएट हुई, एक जगह क्रिएट होने के बाद वहां पे लोग आए, उन्होंने अपने सजेशन रखे और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो सॉल्विंग प्रोसेस से काफी ज्यादा अच्छा रहता है, बट चैलेंजेस अलग अलग लेवल पे रहते हैं। डेटा मैनेज करना, या फिर कितने लोगों ने वहां पे वर्क किया, किस तरीके से वहां पे एनवायरमेंट क्या है। अगर वहां पे मान लीजिए राजस्थान है तो वहां पे अर्ली मॉर्निंग काम होगा, तो हमारी फील्ड टीम को अर्ली मॉर्निंग जाना होगा। अगर मान लीजिए उत्तराखंड है तो वहां दोपहर में काम होगा, क्योंकि वहां पे दोपहर में ज्यादा अच्छा तरीके से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एरिया के हिसाब से चैलेंजेस आते हैं। Okay, ma'am. In one of the slide you have mentioned the opportunities for the youth. उसमें आपने बताया सेतु फेलोशिप है, ग्रास रूट फेलोशिप है, एंड द थर्ड वन दैट इज नेक्स्ट जेन फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज. तो कैन यू प्लीज थ्रो सम हाईलाइट ऑन दीज डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी. ओके ये जो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के बच्चे हैं जी उनके लिए किस तरह से ये सेतु फेलोशिप, ग्रास रूट फेलोशिप और नेक्स्ट जेन फेलोशिप हेल्पफुल हो सकती है? बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं डूइंग गुड इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम डेवलपमेंट वर्क में ही जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ से भी कुछ कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। तो सेतु फेलोशिप में अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो है वो अर्बन साइड का इंसाइट्स मिलते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्लानिंग करती है, किस तरीके से किस तरीके से किस इनिशिएटिव पे माइंड मैप करती है, माइंड मैपिंग करती है, एंड किस तरीके से जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज को रीच आउट करने का प्लानिंग करती है। तो प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ये सब चीजें जो है वो अर्बन एरिया में हम लोग प्लान करते हैं, किस तरीके से हमें जो है वो रूरल एंड अर्बन को कनेक्ट करके रखना है। ये सेतु फेलोशिप में हम लोग प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करते हैं कि सेतु फेलोशिप में सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ अर्बन का ही प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो जो फेलोज हैं उनको हम लोग टाइम टू टाइम फील्ड पे भेज पाए, ताकि वो जितने भी एक्सपीरियंस उन्हें फील्ड से मिले हैं वो यहाँ पे अर्बन में अपनी प्लानिंग में शामिल कर सके, और हम लोग उस तरीके से थोड़ा और डीपली जो है एंगेज कर सके लोगों को। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं। एंड अगर ग्रास रूट की बात करूं तो ग्रास रूट में प्रॉपर जो होता है वो आपको कम्युनिटीज के अराउंड ही चीजें करने को मिलती हैं। कम्युनिटीज के साथ सेशंस करने हैं,
जैसे कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें तो ज़्यादातर हमारे जितने भी फील्ड में हमारे टीम मेंबर्स हैं या फेलोज हैं या फिर और सब लोग हैं, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी से वन टू वन इंटरेक्शन करना है, क्या उनके प्रॉब्लम है, क्या उनके सोल्यूशंस है, उन पर माइंड मैपिंग करना है, उन पे काम करना है। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है हम लोग रूरल फेलोशिप में देते हैं। एंड नेक्स्ट जेन फेलोशिप जो है वो मिक्स ही है, बट उसमें ज़्यादातर जो फेलोज हैं वो अर्बन पार्ट्स में ही रहते हैं एंड उनको भी टाइम टू टाइम जो है वो रूरल एरियाज का विजिट करवाया जाता है ताकि उनको पूरा एक्सपीरियंस लग सके। और ऊपर से जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिनके बच्चे इस फेलोशिप में आते हैं, उन सब लोग को एक, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इससे एंगेज है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे एंगेज होते हैं क्योंकि वो बचपन से गूंज का पूरा प्रोसेस देखते आ रहे हैं, पूरी तरीके से एंगेज होते आ रहे हैं। तो उनको उनको बिल्कुल इस तरीके से एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो पाता है कि जो आज तक मेरे पेरेंट्स काम कर रहे थे मैं उसमें किस तरीके से एंगेज हो पा रहा हूँ या फिर मेरा क्या आइडिया है। तो नए आइडिया लेवल पे हम लोग उनके साथ काम करते हैं। जी। ओके। इसके अलावा एक चीज बताएं, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें सोशल वर्क या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को कि वो अपना करियर गूंज में या किसी ऐसी संस्था में जहाँ पे इस तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ग्रास रूट लेवल पे एक डेवलपमेंट को लेकर के अपॉर्चुनिटीज हों, तो वो किस तरह से इन फील्ड्स में आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? ओके। तो जब मैं डेवलपमेंट सेक्टर की बात करती हूँ तो मैं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, उत्तराखंड के। एंड मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया डीयू से जर्नलिज्म में। एंड उसके बाद जब तक मैं मास्टर्स कर रही थी तो काफ़ी बार आप सोचते रहते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, ऐसा अच्छा करना है कि आपको मन की शांति मिले और आप कुछ बढ़िया भी कर सके सोसाइटी के लिए। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया और थिएटर से मैंने उन सब टॉपिक्स पे बात करना शुरू किया जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, क्या कहते हैं, वुमेन चाइल्ड के ऊपर है। हम अगर बात करें तो कास्ट के ऊपर है। इन सब चीज़ों के ऊपर नाटक करना शुरू किया कि लोग जो है इस पर बात करना शुरू करें। उसके बाद मैंने शुरू किया कि बहुत ऐसे, अगर हम लोग बात करें कि हमें कुछ अच्छा करना है बट हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो शायद हमको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। और बहुत मतलब मैं अकेला हूँ और मैं इस तरीके से कुछ बड़ा चेंज नहीं लेकर आ पाऊंगा। बट मैंने जब देखना शुरू किया तो अलग अलग लेवल पे, और मैंने अलग अलग स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। जैसे यूथ की आवाज़ की बात करें तो उसमें पूरा एक पूरा नया तरीके से शुरू किया गया, एक यंग लड़के ने शुरू किया और उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म को जो है जगह दी। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि उसमें मन की शांति बहुत होती है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में पैसा नहीं है, करियर नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपना क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों से नौकरी छोड़ के फेलोशिप ट्राई किया, और फेलोशिप ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही स्पेस है। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अगर मैं कहूँगी आप इंटर्नशिप ट्राई करिए किसी भी, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे सोशल सेक्टर में ही आना है, डेवलपमेंट सेक्टर में ही आना है, तो आप फर्स्ट इंटर्नशिप ट्राई करिए। इंटर्नशिप को आपको आपको पूरा का पूरा जिस्ट मिल जाएगा कि ये सेक्टर कैसा है। और उसके बाद जो है आपको आपको मन से लगता है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बहुत सारे लेवल पे जो है एंगेज हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि ग्रीन पीस के साथ मैंने काम किया था। और भी और जैसे कि अगर हम लोग टीच फॉर इंडिया की बात करें तो वो भी एक अलग, अगर आप एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं। अगर आप किसी डिसेबिलिटी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके इश्यूज पे काम करना चाहते हैं, तो उसकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपके पास इतने सारे लेवल पे, जिस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, अगर आप एनिमल्स के साथ काम करना चाहते हैं या फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिससे आप कोरली जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम डेवलपमेंट सेक्टर में आए, बट आप जिस लेवल पे भी काम करें, आप वॉलंटियरिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप इंटर्नशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप क्या कहते हैं पार्ट टाइम जो है वो काम कर सकते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि अगर आपको में थोड़ा भी प्लेसमेंट अच्छा, हाँ।
यस सर। इनमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह की रहती है? बिकॉज नॉर्मली जैसा आपने बताया कि लोगों का ये हाँ परसेप्शंस रहता है स्पेशली यूथ में कि यहाँ पे प्लेसमेंट के पैकेजेस वगैरह हाई नहीं होते या इसमें ऑलमोस्ट होता ही नहीं होगा, ये लोग तो सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए या जैसे कि 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है या फेलोशिप है एंड देन जी आई अगेन स्विच बैक टू माई कॉर्पोरेट जॉब और एनी जी पब्लिक हाँ सेक्टर। बट वो एनजीओज में या सोशल वर्क के अंदर आने में एक ये भी रीजन होता है कहीं ना कहीं कि वो उनको मॉनेटरी बेनिफिट या कॉम्पेंसेटरी बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो थोड़ा सा नहीं मिल पाने की वजह से वो ऐसा लगता है। तो क्या ये सही है, ऐसा होता है या अब चीजें बदल रही है, अब ऐसा नहीं है, अब उनको भी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं जो बिल्कुल सोशल वर्क से या डेवलपमेंट एक्टिविटीज में डेवलपमेंट वर्क में इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप अगर फेलोशिप के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करेंगे, अगर मैं टीआईएफ की बात करूं तो उसका अलग पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है उनका, सिर्फ फेलोशिप का ही। अगर मैं गूंज की बात करूं, गूंज का अलग फेलोशिप का पैकेज है। तो बट फेलोशिप अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको एक फुल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, आप अपने मन का काम कर रहे हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब आप यस। अपने मन से काम कर सकते हैं। जब मैं फेलोशिप में थी तो मैं जो भी आइडिया मुझे नजर आता था मैं इम्प्लीमेंट कर देती थी। मुझे लगता था अच्छा बाद में राइट। गूंज देखेगा, बट मेरे पास एक मतलब कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है कि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करती जाऊं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेलोशिप के थ्रू भी अगर जाने की सोचते हैं तो बहुत मतलब लिमिटेड अलग अलग सीट्स रहती हैं, अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा आता है। आपको एक्सप्लोर करने का बहुत सारा मौका मिलता है कि आप अलग लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी पूरी जर्नी को। तो पैकेजेस अच्छे होते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। आप इंटरनेशनल में अप्लाई करते तो वो अपना एक अलग पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। आप इंडियन मतलब कि पैन इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो उनके अब अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हर साल जो है हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई एक बार ग्राफ रहता है उनका, जिस तरीके से वो अपना सैलरीज को इम्प्रूव भी करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो पूरा का पूरा एक आइडिया बना हुआ था कि सिर्फ एनजीओ में वो लोग जाते हैं जिनके पास टाइम है और उनको बस टाइम पास करना है या फिर ऐसी चीजें करनी है, जैसे हम भी बचपन में सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मन से काम करना है और आपको कुछ चेंज लेकर आना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए कोई ना कोई। जी। Thank you so much for sharing this wonderful insight and letting our audience know that this development work or social work is not meant only for the people who are seeking some kind of peace, inner peace, but it is also giving some good packages as well and some good internship and fellowship opportunities as well. So thank you, Madam Pooja Prasad, for sparing your valuable time to share your wonderful ideas and telling us and letting us know with your fine words of wisdom and thoughts because you are already having worked both in national and international organizations. So your views are very important for us and our audience. So thanks a lot for थैंक यू। sparing your valuable time and hopefully in future also we would like to collab and we'll see if we can invite you for a session at our university if possible. That will also be explored. So thanks a lot. Now I'm handing over again to Madam Dalvinder, who will continue with this session. So thank you, Pooja ma'am. थैंक Thanks यू a सर। lot. Over थैंक to यू you, सो मच सर। Dalvinder ma'am. थैंक यू। Thank you so much, Dr. Manvendra Singh and Ms. Pooja Prasad. And now I would request to our admission nominee, Mr. Nitin Kumar, to be on the screen. Over to you, Mr. Nitin Kumar. Thank you, ma'am. Thank you. I hope I'm audible and I'm visible. My screen is visible to Yes, everyone. yes, everything is fine. You can continue. Okay, right. So, greetings from Lovely Professional University. So, I'll be quickly talking about Lovely Professional University and the services and the facilities that we are offered to the students in terms of education and other things. So, a brief about LPU, that is Lovely Professional University, is one of the most largest prestigious private universities established in 2005. LPU offers around 200 plus programs across 40 plus disciplines, home to around 30,000 plus students from more than 50 countries, in-house capacity to around 18 to 20,000 students who live on campus, hub of academic excellence, internship, partnerships, and global exposure, and a lot of opportunities given to students in terms of academics, sports, and other things. Uh, NAC A++ grade being given to university. I personally feel and we believe that, of course, if
somebody talks good about you, then it's fine. It's always good, and it's a paradigm that the different organizations or different those institutions who give us rankings, who give us these scores over the parameters, right? So with a 3.68 score on a scale of 4, it's number one among all the private universities of India. So which is our NAC accreditation. Other accreditations and approvals in terms of accolades, UGC accreditation, ICAR accreditation, one of the most prestigious, I would say. Reason being, our university was one of the first universities who got this ICAR accreditation at that time. Then again, we have got NBA accreditation for our BTech UG programs, right? Then MBA program again for NBA accredited. Other than this, we have UGC, then for LLB programs, law programs, for architecture programs, education programs, AICTE, these for agriculture programs, planning and master program from urban planning, ITPI, then PCI, Pharmacy Council of India. So all the required accreditations and approvals are there. Then NRF ranking, they ranked LPU 27th among all university and private universities and government universities. So as a part of more, we can say, plethora. Times Higher Education, again, they have ranked LPU 99 in world and 6th in India, right? So again, one of the most prestigious rankings in the world that have been can say fetched by LPU, right? Then memberships, again, AAC, SB, AIU, IAU, Association of Commonwealth Universities, Institution of Engineers, IIE, all these prestigious memberships are there with LPU. Of course, fully enabled campus and facilities available for students. So we believe in delivering to the students and ultimately to the parents also. And so we believe that yes, when a student comes to LPU, they would be given world-class facilities, world-class academic experience, and of course, the kind of experience they would get from LPU should be there with them throughout their life. Right. So modern infrastructure, smart classrooms, extensive libraries, advanced labs, research centers, on-campus accommodation, hostels for boys and girls, food courts, medical facilities, recreational services, sports complex, swimming pools, career support, counseling, career support, international student support services. And apart from all these things, other facilities in terms of clubs or in terms of games or in terms of entrepreneurship models, all these things are available for students to experience on campus. I mean, these are few of the glimpses of the campus, students participating in multiple things other than academics. So, see, as we personally believe, as LPU, we believe in an overall development of the student, not in terms only in terms of academics. Other than academics, also a student should grow, should personified in terms of games, in terms of extracurricular activities, co-curricular activities, experience sharing, learning, and so on. Right. So apartment style housing, as I've told you that yes, campus is a residential campus, in-house laundry, mass facility, gym facilities, all are available on campus. As far as the research is concerned, innovation is concerned, yes, we do very seriously, we do take these things very seriously, right? We do have a full-fledged department, dedicated department for research and development cell at LPU, dedicated to fostering a robust research environment. These are some of the achievements, 26500 plus publications, Scopus citations, funded projects, patent granted. So I mean, uh, whatever we can get or whatever we can do best for the students or for the community in general, we are doing. And of course, for the for the faculties also. Our faculties, they are involved with students in all these research and funding projects. Placements by far, I think, is one of the most important aspects from from the perspective of every student that they look for placements in every university or college they want to join. Right. So yes, our students are getting the benefits, and our students are getting the maximum packages. Recently, the student Betty Reddy Naga has got 1 crore package. Then there's another student, Vishnu GSB. Sorry, he's got a package of around 2.5 crore, right, as a senior principal in AI and robotics. So, I mean, if a student has, you can say, the skills, right, so there is no, obviously, we can say,
There's no apprehension, right? They will get multiple options to get placed, right? So recently LPU placement day was celebrated with 1.02 crore package and 1,700 students securing job above 10 lakh rupees. So there are some of the highlights of students who have got placed in different companies ranging from Google, Microsoft, all right, then Amazon, and so on. These are some of the success stories, students who have got placed and who are working in different companies outside the country, right, in other countries. Then there are different events being organized in campus. I mean, in terms of what we call it as One India, then Spectra, and then technical fest, sports meets, and so on. See, the reason is it's only not only about academics, as I've already discussed, right? So it's about the overall development. So these events gives these kind of opportunities to the students where they grow. They get a chance to grow, right? And they learn, they get the experience, right? So which remains there with the student throughout their life. And when they go out in the market, they use this experience. So visitors of Alpi, all these prime personalities, all these famous personalities, be it from politics, be it from sports, be it from any other vertical of society, any other vertical of market, commonplace, right? So they come to campus, they share their experience, they share their stories, they share their learnings with the students. Again, idea is this, that apart from books, apart from the knowledge that they're getting in the classrooms, what else they can get, or what else as a university we can give them, right? We want them to be industry ready. We want them to be a complete package. So apart from the academics, labs, the books, teaching, what else we can give as a university? So these all things we are giving them, right? To grow in life. Industry expert, skill development, research conferences, collaboration with universities, guest like. So these are all things, all the commodities, all the entities that we are offering to students. Study grant, of course, is one of the prime, can say, examples or prime offerings of LPU. Right? So, in which what we are doing, if a student, obviously, they are preparing for IITs or JEEs or for that matter, any national level exam. Right? So, if they are preparing for that exam, if they give that exam, clear that exam, and take admission in any of the national level universities, from, for an example, maybe IIT or maybe NIT, right? So, for studying there, university or LPU is offering them 1 lakh rupees study grant at one time. So our purpose is to help students monitor it, right? So financially, we want to help them. So that is one way with which we can we are helping the students, parents, and ultimately the society. Apart from study grant, there are a lot of other scholarships that we are offering to students in terms of scholarship based upon their qualifying examination, board topper scholarship based on any of the national level tests as I've discussed, scholarship categories, innovation, entrepreneurship, sports, cultural, social services, uh, financial aid, need-based assistance, all these kind of scholarships we are offering to the students. 100% scholarship again for the special scholarship, the toppers of education board, rent and accommodation will be given free of cost. Then we have started this year, we started with two specialized scholarships, Rakshak Samman and Shikshak Samman. So Rakshak Samman is of course for the students from the background of defense, and then Shikshak Samman from the background, the students who are coming from the background where their parents are teachers, maybe father is a teacher or a mother is a teacher, right? So for them, we're giving these scholarships. Again, these are a few of our students who have won accolades in terms of sports, right? Different games they are participating, and they are, I mean, they are winning the accolades for the university and of course for the country as well. Like as you can see, Neeraj Chopra is there, Prathamesh is there, Pramandar is there, Abhishek is there. All these were our students. Uh, University recently won overall championship for the second consecutive year, AI Inter-University National Youth Festival. These are some of the achievements of our students. LPU Women's Boxer lifted AIU All India Inter-University. Then Olympic. These are our Olympic students who won in these games. Some of our other games. So at LP, we believe that yes, apart from academics, yes, of course, we do a lot of we can say innovation in our academics, right, in our curriculum, in our courses that we are offering to the students. Apart from that, also the other things in terms of sports experience, curriculum, co-curricular activities, extracurricular activities. So all these, so it's giving LPU is giving all these things as a package to the students. So
If any one of you is having any questions regarding anything, we are open. Kindly ask. Thank you from Lovely Prashant University. Thank you so much, Mr. Nitin Kumar. Mr. Nitin, someone is asking regarding placement. So can we take this question? Yes, Yes. yes, sure, ma'am. As I've already, so is there anything specific about placements or No, no. Someone journal is about asking regarding how are the placements done in LPU and what's the process? Okay, so see, we do have a very rigorous process as I've already discussed, right? So we take placements very seriously. As a parent, as a student, somebody who is looking for a university or a college, so obviously placement would be the first thing that would come into their mind, right? And we are living that mantra, we are living that life, right? So we believe that yes, somebody who's coming to us or a student who is joining LPU, they would be obviously eyeing for a placements. And due to this reason only, we have devised a specialized platform, we have devised a specialized framework, we call it as personality enhancement program. So what we do is we inculcate this particular we can say framework into their curriculum, right from the first semester, second semester. For any program, if a student is interested in placements, they would be given inputs with respect to placements right from the first semester, second semester, third semester onwards, right? So by the time they would reach their seventh semester, or by the time they would reach their eighth semester, they would be able to express themselves and they would be able to face the companies, maybe for internship, maybe for placements. And every year, the companies, when they visit campus, so obviously, I hope you understand that every company comes with a prerequisite or the requirement that yes, we need a student who is having maybe 60% throughout, 70% throughout, 80% throughout. So depending upon that criteria, the student gets shortlisted and they get a we can say opportunity to sit in that placement drive. And for or before that, every placement drive, what we do is as a university, we take their sessions, we take their preparatory sessions. Now, one, I've told you that we have a rigorous way wherein we are giving them continuous sessions. That is one part. Second part is the specialized sessions right just before the placement drives, so that uh, there shouldn't be any stone which we keep or which we leave unturned as a university, as a faculty, as a staff, or as a student also, right? And of course, I mean, as I've shared some glimpses of placements in terms of the packages that our students have got, right? So a package of 1 crore, package of 2.5 crore, average package goes from 7 to 8 lakh to 15 lakh, 20 lakh, and so on. Companies like Amazon, Google, Microsoft, Infosys, Tech Mahindra, Capgemini, all these companies on yearly basis, they're coming to campus and hire our students. Thank you so much, Mr. Nitin. I hope, Gurpreet, you got your answer from our expert. And once again, thanks to our experts, Dr. Manvendra, Dr. Pooja, and Mr. Nitin Kumar. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a nice day.